Okay students, two chapters we have successfully completed and now we are move towards your first poem. The name of it, A Tiger in the Zoo. Okay, students see, first chapter in that we have seen that faith. Okay, in second chapter we come to know that what is freedom. Okay, so this poem is related with the second chapter. What the second chapter name? Do you remember what it was? The name of the second chapter was Nelson Mandela, Long Walk Towards the Freedom. So here, this poem, the poet has narrated in two ways. First, the journey of the tiger from zoo to forest, and in second, the next two stanzas, the poet narrated this, the journey of the tiger from forest to zoo. So, how he experiences his fear in the true sense. Okay, so you know very well now what is the freedom. Okay, so you know that what is freedom, and the tiger wanted that freedom, but the tiger is not getting it. So he is very curious, we can say, for getting that freedom. So very nicely the poet Leslie Norris narrated here the poem. So I will read the poem first, then I will get the understanding one by one as we are doing regularly. Students see, this poem contrasts the tiger, as I told you, in the zoo with the tiger in its natural habitat. So tell me, what is the natural habitat of the tiger? Obviously forest or jungle, you can say. So the poet moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Okay, the poet moves from, means the poet has narrated this poem this way, that first he narrated the tiger's journey in the zoo, and in second next two stanzas it said that the poet narrated its journey in the concrete cell, or we can say zoo, what the life the tiger is spending there. So reading this poem we come to know that what is the life of tiger in the zoo, what is the life of tiger in the we can say forest. Does it make any difference for him or not? We can get better understanding after reading this poem. So first of all, I am again repeat this one. This is your poem first, and its name is A Tiger in the Zoo. It is written by Leslie Norris. As I told you students, parallelly you have to learn the author's name also, because in introduction in standard 10 already I told in standard 9 to you last year that introduction is compulsory while writing the answer, either it is prose or poetry. You have to write the introduction, because 2 marks question will be asked in the exam, 1 mark for introduction and 1 for the explanation of the answer. So you have to learn parallelly the writer's name while learning this poem. Okay. So let's start the poem. I will read it first. 4 stanzas are there, and parallelly you have to learn the figures of speech. You know guys, figures of speech we have already learned, and very nicely I have told you to write the notation of it. All the figures of speech I have given to you. These 26 or 27 figures of speech are must for standard 10. Between means among them only in exam it will ask. So what you have to do from the camp book. As I told you, for 10th standard follow the camp digest. In camp book you have given line wise introduction of the figure of speech. So it is better for you to understand what is the which figure of speech comes here, why it came here. Means what? You have to follow this way while learning the poem, because learning chapters are very easy. You can read the story. Once you learn the story, then it is very easy for you to follow the question answers. But in poem, you have to find the hidden meaning of it. Then only you can able to write the poem's question answers in detail. So what you have to do, whenever I am explaining this poem to you, give your attention over here. After hearing this lecture, keep open your textbook, read the poem 2 times, and stanza wise, or we can say paragraph wise, try to understand each stanza's meaning properly and try to find out which figure of speech is included here. So parallelly you can write. I have the textbook of my student here, and he has written all the figure of speech very nicely line wise.
Because some students, what they are doing, they are writing it in the notebook, and at the time of exam they are not getting that notebook, so lot of problem they will face there. So what you have to do parallelly, after reading of the poem, you just try to find out the meaning of each and every stanza, then after write down the figure of speech in the textbook itself only. Clear, students? So after completion of my all the notifications that I have given, now I will read this poem, so you listen it carefully. He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet white, in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Written by Leslie Norris. Here you have given total 5 stanzas. So I read the poem. Now I will explain it one by one. First stanza says that he stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet white, in his quiet rage. Student, this is the description of the zoo. The tiger caught by the zoo people in the zoo, and right now the tiger is in the zoo. For him, you know, the tiger is a huge animal. Okay, so where he has put in the cage is very small as compared to his body, and that is why he is not feeling well there. So he is just stalking. Stalking means walking to and fro. He is just walking here and there, and he is in a great rage. Rage means anger. He has a great anger in his mind, and he is just arising because of the that anger. He is very uncomfortable, and on the pads of velvet white. Pads, have you seen the feet of the tiger? They are like velvet. Okay, so whenever the tiger is walking in the forest or in the zoo, we can't able to hear its footsteps. That is different. That is why the poet compared its feet with the velvet white, or it's compared its claws with the pads of the velvet. That is why, because very silently the tiger was just moving or roaming in the cage only, and he is taking the vivid steps, means long step. He is walking in the zoo, but the tiger is not getting the enough space to move. That is why he is thinking that whenever this is a very uncomfortable place for him, and he is not ready to leave here. But the tiger has no option. The tiger has no choice. That is why he has to live there only. In second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Now here the poet has moved away the scene from the zoo to the jungle. The poet is now narrating about the tiger, if the tiger would be in the jungle. If the tiger would be in the jungle, then how his we can say that thinking and how his impression was. So let's see what is given here. Lurking means what? Waiting. Lurking means waiting. So the writer is saying that the tiger was waiting for a prey. Its prey. The tiger was waiting for its prey, and the tiger was hidden in the shadow through the long grass. Have you seen that the tigers are normally found where the dry grass is there, and the tiger's body has lot of stripes over his body, and these stripes are getting matched with the long grass. You know that where dry and long grass is yellowish color. So the tiger get matched in that yellow grass, and no one able to found or see that the tiger is hidden there. So that is why the tiger was waiting for its prey. He was just hidden behind the long grass, and where he was means hidden near the water hole where plump deer pass. Plump, here I have written over. Plump deer means what? Fat deer, fresh, fat, young deer. He is waiting for its prey, and here the deer is its prey.
prey of the tiger, and the tiger is waiting for a plump deer or the fat deer whenever the deer came in the water hole. Water hole means what? A small pond or a small pool, we can say. In the jungle they are having a pond, okay, all the animals are used to drink the water there only, and that is the best chance for lion and tiger to hunt these animals. Otherwise it is not easy for them to catch their prey. You know very well, you are always watching in the geography channel, or you have the mobile also, in YouTube also you are watching that for getting their prey it is a very tough job. They are not getting their prey easily. They awaited a lot, and then lastly or some other day they haven't found their prey. Someday only they are getting their food. That is why they are awaiting it very curiously, or we can say that with a great attention. So if the tiger is saying that in the first stanza, what he explained, the tiger was present in the cage. The cage is small as compared to his huge body. That is why he is not feeling comfortable there, and so he is putting a vivid steps, and I am saying he for tiger because we can take he tiger, okay students. So the tiger is taking the huge steps and just moving and fro, to and fro he is moving there, and he was in a great anger. This is the narration of the tiger in the zoo. In first stanza we have seen. Now in second stanza what we have seen, the tiger was in the forest. In second stanza the poet shows us that the tiger was in the forest. He is the tiger, means he means the tiger. The tiger is waiting for the approaching prey, and he is waiting for that plump deer, that once the deer came over for drinking water, he will attack on that deer and he will get the prey. Okay, he will get its food. So in the second stanza, means here we get the difference. First one, the poet narrated about tiger, the scenario of the zoo, and in second stanza the poet is going to narrate, means the poet suppose the tiger to be in the forest only. Now see what is given in the third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Here the poet is saying that the tiger is very aggressive. You know, tiger always, their look is like that only. वो दिखते ही ऐसे है कि उनको देख के हमें डर लगता है, वो मारेगा बाद में, और उसको देख के हम लोग पहले मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली प्रे के ऊपर अटैक करता है. यू नो द एजेंडा मीन्स किस तरह से वो प्रे को पकड़ता है. टाइगर का लुक ही कुछ ऐसे होता है, वेरी एग्रेसिव, वेरी फियर्स वी कैन से. वो इतना एग्रेसिव और फियर्स होता है कि उसको देख के हम लोग पूरी हिम्मत हमारी हार जाती है. हमको दौड़ना चाहिए तो भी हम लोग दौड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से टाइगर हम लोगों के ऊपर इजीली क्या करता है, अटैक करता है, हमको मार देता है. मीन्स मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि उसका फेस और उसका जो दिखावा है वो इस तरह से है कि जिसको देख के एनिमल्स आर गेटिंग अफ्रेड, वो डर जाते हैं, और जिसकी वजह से वो इजीली द टाइगर कैचिंग देम एंड यूज्ड एज अ फूड. फिर आगे दिया है देखो, जंगल एज. जंगल एज मीन्स द प्लेस वेयर द पॉन्ड इज देयर एंड ऑल द एनिमल्स आर यूज्ड टू ड्रिंक वाटर, and that is the place, and that is we can say very easy place for the tiger to get their prey. Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Sometimes what happens, students, if for a long time if they are not getting their food in the that pond, then they went away and away from the jungle in search of the food. जब उनको कभी कभी क्या होता है, उन लोगों को उनने जंगल के एरिया में कभी कभी खाना नहीं मिलता है, उनका जो फूड होता है वो नहीं मिलता है. तो फूड तो सबकी नेसेसिटी है, दिस इज द बेसिक नेसेसिटी, यू नो. तो जब वो नहीं मिल रहा है तो वो लोग उसको ढूंढने के लिए दूर दूर तक चले जाते हैं. समटाइम्स दे क्रॉस द जंगल ऑल्सो, कभी कभी वो जंगल को भी क्रॉस करके बहुत दूर चले जाते हैं. एंड यू नो द population is increasing day by day, so the human beings started to live in the nearby forest area. Actually it is prohibited by the forest department, but the people are not ready to listen, and that is why they have to pay the cost for it. बराबर कि नहीं? लोगों को, तुमको पता है पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो हैबिटेट्स एनिमल्स के लिए है, जिसको हम लोग जंगल बोलते हैं, वो जो जंगल है वहाँ पे भी लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया. तो सोचो, तुम लोग ही सोचो, सिर्फ जस्ट इमेजिन करो कि हमारे घर पे अगर कोई दूसरा रहने आ जाए
the human beings started to live in the forest areas and they have to suffer a lot. They have to pay the cost for it. उनको कीमत चुकानी पड़ रही है. कैसे? By giving away their lives. उनकी जान देके. क्योंकि क्या होता है जब फॉरेस्ट टाइगर जब विलेज में आता है तो विलेजर्स आर नॉट अवेयर अबाउट इट. उनको पता नहीं होता कि टाइगर है, कोई भी है, चीता है, लायन है, वो अचानक से ही आते हैं क्योंकि उनको भी पता नहीं होता है वो विलेजर्स में जा रहे हैं. दे आर जस्ट सर्चिंग देयर फूड. वो उनको सिर्फ फूड ढूंढना होता है. तो जहाँ उनको फूड मिलता है बस वहाँ हो जाते हैं. ये सिंपल थिंग है. किसी की भी जैसे तुमको पता है ये शॉप पे ये रेस्टोरेंट के अंदर या ये पिज्जा हट में अंदर ये पिज्जा अच्छा मिलता है, तुम लोग हमेशा वहीं पे जाओगे. सेम टाइगर के साथ भी होता है. वो भी वहीं पे जाएगा ना जहाँ उसको फूड मिलेगा. तो यहाँ पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि वो उसके क्लॉज के साथ मीन्स उसके जो पंजे होते हैं उसके साथ चल रहा है और वो कहाँ पहुँच गया है? विलेज के अंदर पहुँचा हुआ है, जिसकी वजह से द टाइगर इज टेरराइजिंग द विलेजेस. मीन्स वो टेरर फैला के रखा है, उसने आतंक फैला के रखा है विलेज के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है उसके हाथ में कोई भी आता है. कोई बच्चा आ जाता है, कोई बूढ़ा इंसान आ जाता है, कोई लेडी आ जाती है, कोई भी आ सकता है. और टाइगर के कब्जे में या पंजे में अगर कोई आ गया तो कितना भी ब्रेव इंसान वो शायद से ही हिम्मत करेगा कि वो लेडी को छुड़ाए या वो बच्चे को छुड़ाए. मीन्स फाइनली द टाइगर गॉट द प्रे एंड ही टेकन अवे एंड वेंट इन द जंगल. वो क्या करता है जैसे उसको शिकार मिलता है उसको लेके भाग जाता है. कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि सबको पता होता है कि टाइगर के हाथ में जाना तो ऐसा करे चल छोड़ टाइगर, ऐसा तो नहीं कर सकते. इसीलिए जो टाइगर है अगर उसके हैबिटेट में जंगल के अंदर उसको फूड नहीं मिल रहा है तो जंगल के सराउंडिंग एरियाज के अंदर ट्राइबल पीपल आर यूज्ड टू लिव. वो वहाँ पे रह लेते हैं. ओके, तो दे हैव टू सफर अ लॉट. एक बार स्टूडेंट मैंने एग्जाम दी थी लास्ट ईयर, मैंने शायद तुम लोगों को बताया था. वो एग्जाम के अंदर मैंने यही पढ़ा था फॉरेस्ट का. वहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते थे एंड दे वर नॉट एजुकेटेड, वी कैन से दे आर टोटली जंगली पीपल, हम लोग ऐसा बोल सकते. तो उन लोगों के साथ ऐसे हादसे होते थे. स्पेशली दे हैव फेस विद द बेयर्स. बेयर उनके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देते हैं. बेयर का हमला करने का जो स्टाइल होता है वो टोटली अलग होता है. क्यों पता है? क्योंकि वो पहले इंसान को सूंघता है और उसके बाद पहले वो पूरे फेस पे कब्जा करता है, पूरी तरह से नोच डालता है. बेयर कभी भी इंसान को खाता नहीं है, मैं तुमको बोल दूँ. पर अगर हम लोग उसके सामने गए तो वो अभी जिंदा भी नहीं छोड़ता, पूरे नोच देता है. तो एक केस मैंने उसके अंदर पढ़ा था कि जैसे तुमने प्रकाश आमटे के बारे में सुना होगा, डॉक्टर प्रकाश आमटे, बाबा आमटे के बेटे. महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत बड़ी वो मूवमेंट चलाई थी ट्राइबल पीपल्स के लिए, है ना. तो सेम मैंने वो चीज़ पढ़ी थी, उसके अंदर ऐसा ही दिया था कि वो आदिवासी लोग जो थे ना, दे यूज्ड टू कम विद प्रकाश आमटे बिकॉज ही वाज अ डॉक्टर, हिज वाइफ इज आल्सो डॉक्टर. तो उनके पास एक केस ऐसा आया जिसकी आंखें नोच डाली, पूरी निकाली आंखें, ये हाथ पूरा निकाला हुआ है, समझ में आया. तो भी वो इंसान सोचो 5 मील चल के डॉक्टर के पास आए. हम चलेंगे? हम 2 फुट भी नहीं चलेंगे, समझ में आ रहा है तुम लोगों को. वो जो इंसान था यानी वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग है देखो. यानी ऐसे जो हादसे होते हैं ना, वो जो जंगली लोग यानी जंगल के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको तो सफर करना ही पड़ता है. इसीलिए यहाँ पे टाइगर ने यहाँ पे बोला हुआ है कि द टाइगर इज टेरराइजिंग द विलेज. पूरे गांव को आतंक मचा के रखा है, पूरा गांव डरता है, कोई इजीली निकल ही नहीं सकता. और टाइगर आता है तो हम लोग दरवाजा बंद करने की हिम्मत होती है क्या? नो. तुमको पता है साइंस में तुम लोग पढ़ चुके हो रिफ्लेक्स एक्शन. जैसे मैं तुमको ऐसे याद करूंगी तो तुम लोग ऑटोमेटिक ऐसे हो जाओगे, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, है कि नहीं. तो जैसे ही टाइगर आ रहा है तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे बोलो तो. जैसे टाइगर तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, तुम लोग ऐसा बोलेंगे वेलकम आजा इधर है, ऐसा बोलेंगे नहीं. क्या करोगे तुम लोग उसको? पहली स्टेप तो तुम लोग भागोगे, कुछ भी हो जाए कि ऐसा चलो मैं दरवाजा बंद करूँ. नहीं, ये हमारे ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो डायरेक्ट उसको समझ में नहीं आता. तुमको पता है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन को कि भाई ये टाइगर मुझे दिख रहा है तो मैं क्या करूँ. फिर ब्रेन ऑर्डर देता है, फिर हम लोग एक्शन करते हैं. इसलिए देखो तुमको पता है कोई गर्म चीज को अगर हम लोग टच करते हैं तो पहले हमें गर्म लगता है, बाद में हम लोग हाथ ऐसे करते हैं. हमें पता है हम लोग गर्म चीज को हाथ करने के लिए जा रहे हैं, टच करने. हमें ये भी पता है कि वो गर्म है, पर हमें बाद में पता चलता है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्स एक्शन. क्योंकि थोड़ी देर के बाद हमको रिएक्शन समझ में आता है. तो टाइगर अगर सामने है तो ऑब्वियसली हम लोग दरवाजा बंद करने के चक्कर में तो पड़ेंगे नहीं, हम लोग दूर भाग जाएंगे. तो सेम वे इसलिए यहाँ पे ऑथर ने यूज किया है कि द टाइगर इज टेरराइजिंग द विलेजर्स. द टाइगर हैज टेरराइज्ड द होल विलेज. ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं. आई होप तुमको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से. वी आर आगे बढ़ते हैं. देखो
Fourth stanza. But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अभी फिर से राइटर वापस लेके आया हम लोगों को जू के अंदर। देखो फिर से मैं बोलूंगी, पहले हमने क्या देखा, राइटर ने क्या बोला है पोएट ने कि पहले वो जू का एक्सप्लेनेशन किया, उसके बाद जो दो पैरास थे, जो दो स्टैंडर्ड्स थे, उसमें हमने क्या देखा कि फॉरेस्ट का लाइफ कैसा है। तीसरे स्टैंडर्ड में देखा कि समटाइम्स द टाइगर इज कमिंग इन द एंटर इन द विलेज आल्सो, तो तब वो क्या कर रहा है, और फिर से टाइगर को राइटर जो कहाँ नैरेट कर रहा है, कौन से टाइगर के बारे में भी बता रहा है, जो टाइगर जू में रहता है। अभी देखो यहाँ पे राइटर ने बोला है कि ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि द टाइगर इज अ वेरी फ्री एनिमल, वी कैन कंसिडर हिम एज द किंग ऑफ द जंगल। ओके, सो ही इज द किंग ऑफ द जंगल एंड सपोज किसी किंग को एक रूम में बंद कर दो, चाहे वो सोने का केज क्यों ना हो, उसको अच्छा लगेगा? तुम लोगों को ही देखो, मैं एक रूम में बंद कर दूं, सब कुछ फैसिलिटी है रूम के अंदर, तुम लोग रह पाओगे? नहीं, तुमको अच्छा लगेगा ही नहीं। सब कुछ होने के बाद भी तुमको ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ से निकल। तो सोचो, जो टाइगर पूरा फॉरेस्ट घूमता है, इवन विलेजर्स के अंदर भी उसने टेरर फैला के रखा हुआ है, वो टाइगर को हम लोग 10 बाय 10 के केज में अंदर बंद करके रखते हैं, तो वो कैसा रहेगा? तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि हमें एनिमल्स को कभी भी केज करना चाहिए नहीं। हमको वो फीलिंग आनी चाहिए, हमारे अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं, सबको अपना अपना फ्रीडम प्यारा होता है, चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो। इसलिए तुम लोग ऐसा बोल ही नहीं सकते, जैसे कोई बेगर है, ओके, उसको मैंने बंगले में बंद कर दिया, वो नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यानी सबको अपना अपना फ्रीडम बहुत प्यारा होता है। तो अभी कॉन्क्रीट सेल का मीनिंग है केज। कॉन्क्रीट सेल मीन्स केज। वो जो टाइगर है उसको अभी ये जो लोग हैं, मीन्स जो भी जू पीपल, उन्होंने उसको लाके, मीन्स वो सेम टाइगर ने, हियर द पोएट हैज मेड द डिफरेंशिएशन बिटवीन द टाइगर हु यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट वर्सेस द टाइगर हु इज लिविंग इन द जू। ओके, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि उसको कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक करके दिया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, व्हाटएवर द पावर ही इज हैविंग, कितनी भी स्ट्रेंथ क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बार्स यानी वो आयरन के जो रॉड्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, सरिये के ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे पक्का पता नहीं, पर ये जो आयरन बार्स होते हैं ना, रॉड्स बड़े बड़े, उसके अंदर वो अंदर है, तो कितनी भी पावर लगाएगा तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला है? बोलो नहीं। वो कितना भी रोर करेगा, लोग सुनते हैं, पता है, जैसे जू में तुम लोग क्या, मैं भी काफी बार जैसे ही मैं टाइगर की आवाज सुनती हूँ, सब छोड़ के मैं पहले वो सुनने चली जाती हूँ, सब लोग जाते हैं, क्योंकि हमको ये आवाज कभी सुनने को मिलती नहीं है। तो रियल साउंड जब वो रोरिंग कर रहा है, जब वो बोल रहा है, तो लोग उसकी जो मन की दुख की बात है वो किसी को पड़ी नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट आता है, देखो देखो टाइगर वहां पर रोरिंग कर रहे हैं, वो देखने के लिए लोग जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार के अंदर है, यानी वो केज के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकता, वो कितनी भी ताकत लगाए तो भी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो रॉड्स को तोड़ के बाहर आए। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, फिर वो रोरिंग करके थक जाता है, और विजिटर्स रोज उसको आते ही दिखते ही, उसको पता है मॉर्निंग के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो जू चालू होता है, कितने सारे लोग उसको देखने आते हैं, बराबर कि नहीं? जैसे मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, जैसे हम लोगों के यहाँ पे स्कूल में जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, साइंस फेयर हुआ था, है हुआ था कि नहीं साइंस फेयर? तो वो साइंस फेयर हमारा लगभग 2 या 3 दिन चला था, ये एक ही दिन था, चलो। तो वो जो एक दिन का साइंस फेयर, तो पहले जो शुरुआत के आवर्स थे उसमें तुम लोग बहुत ही इंथुजियास्टिक और सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर जैसे ही लोग आने शुरू हो गए, बहुत सारी भीड़ हो गई, आते थे, 9 बज गए, 10 के 12 हो गए, 12 के 3 बज गए, तो वही स्टेमिना, वही इंथुजियाज्म तुम लोगों में था नहीं? टोटली तुम लोग थे क्या, ये लोग आ रहे वही बार बार एक्सप्लेन करना। सेम थिंग हियर हैपेंड विद द टाइगर। टाइगर पहले उनको देख के उसको ऐसा लग रहा था कि मैं किसी एक के ऊपर इतने सारे मस्त मस्त दिख रहे हैं, इनके ऊपर मैं अटैक करता हूँ, पर जब उसको पता चला कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू क्रॉस और टू ब्रेक दैट बार्स, तो जिसकी वजह से उसने सोचा कि अभी मुझे तोड़ना नहीं, बैठे रहो, चिल्ला के कुछ फायदा है नहीं, और विजिटर जो है दे आर यूज्ड टू कम, वो आते ही रहते हैं, इसलिए उसने उनको इग्नोर कर दिया। फिर आओ भाई, कभी कभी देखो हम लोग मोस्टली व्हाट हैपन, जब हम लोग जू के अंदर जाते हैं तो टाइगर मोस्टली भी फाउंड
दे आर स्लीपिंग ओनली, है ना, सोते हुए दिखते कि नहीं। कुछ जो होते हैं वो यहाँ से वहाँ ऐसे, यहाँ से वहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, बाकी वो चिल्लाते नहीं है। देख लो तुम लोग, कभी कभी ऐसा होता है, हार्डली कुछ हो तो, अदरवाइज वो कभी भी रोर करते नहीं है, क्योंकि उनको पता है रोर करने से कुछ होगा नहीं, मेरा ही गला बैठ जाएगा, बराबर कि नहीं। फिर इसलिए राइटर ने यहाँ पे बोला है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। फिर आगे वो यहाँ पे बोल रहा है, देखो, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. राइटर यहाँ पे बोल रहा है, लास्ट स्टांजा यहाँ पे वो बोल रहा है, देखो कि पूरा दिन बीत गया, मैंने जैसे तुमको बोला मॉर्निंग के 9 AM to 9 PM सारे विजिटर्स आते गए आते गए आते गए, वो भी थक गया, बराबर। फिर रात हो गई, ओके, तो उसने देखा कि लास्ट वॉइस यानी जो 2-3 लोग आते होंगे बस वही उसने सुना। फिर बाद में उसने किसकी आवाज सुनी? पेट्रोलिंग कार्स की। तुमको पता है अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा है तो पुलिस की पेट्रोलिंग चलती रहती है, वो चेकआउट करते कहाँ पे भीड़ है, कौन क्या कर रहा है, सब एक्टिविटीज के ऊपर वॉच करने के लिए उनको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो वो देख रहा है कि रात को उसको किसकी आवाज आ रही है? व्हीकल्स की, स्पेशली विच व्हीकल्स, दोज हु आर डूइंग द पेट्रोलिंग देयर। वो वहाँ पे वॉच करने के लिए व्हीकल जो कार घूम रही है बस वही वो सुन रहा है ऐसे। एंड उसकी जो आंखें हैं, स्टेयर्स हैं, तो लोग कंटिन्यूअसली एट वन डायरेक्शन, एक तक देखे रहना, उसको हम लोग स्टेयर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे उसकी जो आंखें हैं वो सिर्फ एक ही साइड में देख रही है, और बाद में क्या देख रहा है वो? उसकी आंखें कहाँ पे है? स्काई की ओर। देखो, जब हम लोग नर्वस होते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं या बिल्कुल थक जाते हैं तो हम लोग इतना, हमारे अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे बैठ के एक टक ऐसे देखते रहते हैं, स्पेशली ये छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो टाइगर भी सेम यहाँ पे पूरे दिन की थकावट फील कर रहा है, उसको नींद तो आएगी नहीं क्योंकि उसको जो फ्रीडम चाहिए वो आप में मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से वो थक गया है, बट उसकी सोने की इच्छा नहीं है और वो स्काई की ओर कंटिन्यूअसली देख रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट हुई। तो अभी देखो, तुम लोग बोलोगे मैम ये जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा ये और पोएम में तो कुछ डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली, नो डिफरेंस एट ऑल। इन सेकंड चैप्टर हमने देखा हमारा फ्रीडम, ह्यूमन बीइंग्स फ्रीडम। ये पोएम इसीलिए डाली है उसके बैक में कि एनिमल्स के लिए भी फ्रीडम उतना ही प्यारा होता है जितना प्यारा हमारे लिए होता है। अभी तुम लोग देखोगे तो ये टेक्स्ट बुक में दूसरी 3 छोटी छोटी पोएम्स हैं। एक्चुअली वो एग्जाम में नहीं आती है वो पोएम्स, बट तुम लोग खाली रीड करके रखना कि वो किस तरह से आती है। बाकी तुमको जो क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने होंगे वो इसी पोएम के करने होंगे। अभी हम लोग एक जस्ट क्या बोलते हैं, ओवरलुक करते हैं तुम्हारी पोएम की ओर। यहाँ पे पोएट ने पोएम को 2 तरह से नैरेट किया है, द जर्नी ऑफ द टाइगर फ्रॉम द जू टू फॉरेस्ट एंड अगेन फ्रॉम फॉरेस्ट टू जू। ओके, तो पहले स्टैंडर्ड में हमने देखा कि वो 10 बाय 10 के केज के अंदर बंद है जिसकी वजह से वो गुस्से में है। दूसरे स्टैंडर्ड में देखा कि एक टाइगर है जो जंगल में रहता है और फ्री है, वो अवेट कर रहा है उसके जो शिकार की, वो वेट कर रहा है, बराबर, उसको कब शिकार मिलेगा और उसके ऊपर कब अटैक करेगा। तीसरे स्टैंडर्ड में हमने देखा कि टाइगर जो है जब उसको फॉरेस्ट के अंदर अगर कुछ मिलता नहीं है फूड तो वो क्या करता है, फॉरेस्ट के आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं वहाँ पे अटैक करता है। वहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं विलेजर्स, तो उनको भी वहाँ पे उसने टेरर फैला के रखा है। 4th पैराग्राफ में हमने देखा कि उसको कॉन्क्रीट सेल ने बाहर में फिर से बंद करके रखा है, और लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि पूरे दिन हो गया है, वो थक चुका है, कंटा गया है, ही इज सिक एंड टायर्ड एंड दैट इज व्हाई ही जस्ट स्टेयरिंग एट द स्काई विथ हिज ब्यूटीफुल आईज। मींस व्हाट, यहाँ पे हमारी पोएम कंप्लीट। इसको तुमको जैसे मैंने बताया रीड भी करना है, पैराग्राफ वाइज उसको समझना भी है। मैंने तुमको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उसके फिगर्स ऑफ स्पीच भी तुमको लिखने हैं क्योंकि एमसीक्यू में 3 मार्क के लिए फिगर ऑफ स्पीच आती ही है। एमसीक्यू में ऑप्शन में आएंगे वो, बट तुमको वो पता चलना चाहिए कि ये फिगर ऑफ स्पीच कहाँ से है। सो स्टूडेंट, आई होप तुम लोगों को ये पोएम अच्छी लगी होगी, और कभी इसको पर्सनली लेके भी सोचना कि ये टाइगर की बात है, अगर यहाँ पे मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम लिख दूँ तो उसकी हालत क्या होगी। इसीलिए अपने लाइफ को तुमको कैसे जीना है, फ्रीडम के साथ जीना है। जो दिन में 3 इडियट्स में देखा है, ये हमारा हाथ उल्लू होता है, उसको उल्लू बना के ही रखना है, तो ही तुम लोग ये लाइफ का जो मजा है वो ले सकते हो। अदरवाइज हमारी हालत कैसी हो जाएगी, टाइगर की तरह हो जाएगी। क्लियर? सो यहाँ पे चैप्टर हमारा लेक्चर 4 कंप्लीट होता है विद दिस पोएम।
We will meet in next lecture with new some more new language or new knowledge. Okay, bye.